یہ کہانی ان 5 معصوم حسن بے مثال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنی پرفریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرار قوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے باب رقم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور بالآخر شیطان کے ان شاگردوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پر اسرار عورت کا آنا جانا تھا، اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت۔ اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی۔ میں تمہاری کالی تقدیر کا جو اپائے تلاش کرنے گئی تھی اس میں آشیش بھگونت نے میری مدد کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رائے گرو دت اپنے بیٹے کے راستے کے سب سے بڑے کانٹے ہیں۔ جب تک کہ ہیرا لال یہ کانٹا اپنے راستے سے نہیں ہٹائے گا اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مجھے پوری تفصیل بتائی گئی اور کہا گیا کہ ہیرا لال سے کہو کہ وہ یہ کام کر ڈالے، اور اب تم خود سوچو کہ رائے گرو دت سے میری کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ہاں دیوی، یہ تو ہے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پتا جی نے دوسری شادی کرنے کے بعد ہم بہن بھائیوں کو بالکل کتے کی حیثیت دی ہے، اور وہ صرف اپنی دھرم پتنی کے پھیرے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہی بات ہے، اور وہ دھرم پتنی تمہیں پاتال میں پہنچا دے گی ہیرا لال، وہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گی، اور ابھی تو اس نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور جانتے اس کا منصوبہ کیا ہے دیوی؟ یہ کہ تم ڈاکو بن کر ڈاکے ڈالتے رہو اور اتنی برائی پیدا ہو جائے تمہارے دل میں کہ حویلی کے لیے تم خود حویلی کو اپنے ہاتھوں سے جلا ڈالو، اور آخر کار قانون کے شکنجے میں پھنس کر زندگی کھو بیٹھو، اور اس کے بعد بھلا اس کے راستے کی رکاوٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہیرا لال گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دیوی، اور میں یہ کام کروں گا، اور میں ان دونوں کو موت کی نیند سلا دوں گا، اور اس میں میری تقدیر کی روشنی ہے۔ جی آشیش بھگونتا، روپا نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ یہ آشیش بھگونتا نہیں، احترام سے نام لو ان کا، ہاتھ اٹھاؤ۔ اور ہیرا لال نے اس کے کہنے پر ہاتھ اٹھا دیے، لیکن اسی وقت شیطان نے روپا کے کان میں سرگوشی کی، یہ کیا کر رہی ہے پاگل کی بچی؟ اسے میرا پجاری نہ بنا، اور اگر یہ میرا پجاری بن گیا تو یہ کھیل پورے نہیں ہو سکے گا۔ روپا نے یہ الفاظ سنے اور ایک دم بجھ گئی۔ ہیرا لال ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا تھا، لیکن اس کے بعد روپا خاموش ہو گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ہیرا لال یہی سمجھا کہ اس کے بعد اسے یہی کرنا ہے، چنانچہ کمرے میں خاموشی کی فضا طاری ہو گئی۔ بہرحال شیطان کا اپنا کام ایسا ہی عجیب تھا، اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو شیطان چاہتا تھا۔ رائے گرو دت اپنے ساتھ زندگی کا بہت بڑا عذاب لے کر آیا تھا، اور اس سے پہلے تو بیٹا گھر سے باہر رہ کر حویلی کی عزت اچھال رہا تھا، لیکن اب تو وہ گھر میں ہی آ گیا تھا، اور اس نے وہ شیطانی ہنگامے کیے کہ رائے گرو دت کا دل خون کے آنسو روتا، اور بیٹا تھا اسی لیے اس کے خلاف کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس دن تو رائے گرو دت کو غشی کے دورے پڑنے لگے جب سرسوتی کو زہر دے دیا گیا، اور اس کی ایک ملازمہ نے ہیرا لال کے کہنے پر سرسوتی کو زہر پلا دیا۔ سرسوتی کا کلیجہ کٹ کٹ کر حلق سے باہر نکلنے لگا، اور چاروں طرف ہاؤکار مچ گئی۔ سرسوتی بہت اچھی عورت تھی، اور 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آخر کار اس نے دم توڑ دیا۔ رائے گرو دت کے لیے اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد سرسوتی زندگی گزارنے کا ذریعہ ثابت ہوئی تھی، اور اس کی موت کے بعد گرو دت کی زندگی تاریک ہو گئی۔ شبہ تو تھا کہ زہر بیٹے نے دیا ہے، یقین نہیں تھا۔ ہاں، جب وہ ملازمہ ہی ضمیر کے ہاتھوں شکار ہو کر رائے گرو دت کے سامنے پہنچی اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اس کی وجہ سے ہیرا لال کو بتایا، تو رائے گرو دت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بہت کچھ سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے ہیرا لال کو اپنے کمرے میں طلب کیا، اور ہیرا لال خاموشی سے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں میرے بچے، بہت سی شکایتیں ہیں تمہیں مجھ سے، اور نہ جانے میرا من چاہتا ہے کہ آج میں تم سے اپنے بارے میں ساری شکایتیں معلوم کر لوں۔
कोई शिकायत नहीं है मुझे पिताजी आपसे, बस आपने जो सारे धन दौलत पर कब्जा जमा रखा है मुझे उस पर एतराज़ है और कोई ख़ास बात नहीं। हाँ तुम ठीक कहते हो, वाकई बिल्कुल ठीक कहते हो, और मैंने सारे घर के सारी धन दौलत पर कब्जा जमा रखा है। मगर मेरे बच्चे, इस संसार में बड़ी बड़ी अजीब कहानियाँ बिखरी हुई हैं और धन दौलत का खेल ऐसा ही होता है। मैंने सदियों से ये खेल खेलता आया है और सदियों का तजर्बा ये है कि इस खेल में सरासर नुकसान ही होता है। जितना इसका लालच करो उतना ही समझ लो जिंदगी मौत के करीब होती चली जाती है। सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं। और ये क्यों नहीं सोचते बेटा कि हर इंसान का अपना एक आशीष होता है और हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ चाहता है। अब तूने इस नौकरानी के जरिए एक बेगुनाह औरत को मार दिया जो हमेशा यही कहती थी कि हीरा लाल वो सब कुछ दे दे जो वो चाहता है और हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, और उस औरत को मार दिया तूने। कौन कहता है बेटा, पूरी तहकीकात के बाद ये बात कह रहा हूँ, और मेरा संसार बात इतना ही रह गया था कि अपनी धर्म पत्नी के साथ हंस बोलकर वक्त गुजार लेता। सो तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। और बेटा मैंने फेरे लिए थे उसके साथ और वादा किया था कि उसके जीवन की रक्षा करूँगा, नहीं कर सका और एक मुजरम बन गया मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुजरम को सज़ा दे दो। आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही पिताजी, तो फिर ये समझ लो कि अपनी वो जिम्मेदारी पूरी ना करने पर मैं अपने आप को सज़ा देना चाहता हूँ। और मेरे लिए बेटा इससे बड़ी सज़ा क्या है कि एक बाप अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िंदगी से दूर कर दे। और ये कहकर राय गुरुदत्त ने रिवाल्वर निकाल लिया और उसका रुख हीरा लाल की तरफ करके बोला, मैंने कहा था ना कि माया तो बहुत बड़ी चीज़ होती है और इंसान इस चक्कर में फंस कर यूँ समझ लो कि जीवन ही खो बैठता है, और आज तुम उसका शिकार हो रहे हो। राय गुरुदत्त ने कहा, और उसके रिवाल्वर से 3 शोले निकले और 2 गोलियां हीरा लाल के दिल में और एक दिमाग में प्युसत हो गईं। हीरा लाल की आंखें एक लम्हे के लिए हैरत से फटी की फटी रह गई, और फिर उसके मुंह से खून की धार निकली और उसके बाद वो ऊंधे मुंह जमीन पर आ पड़ा। अपने खून के कतरे को जिंदगी भर की मेहनत के बाद परवान चढ़ाकर इस तरह खून में डुबो देना इतना आसान काम नहीं, पर मैं इंसाफ कर रहा हूं और अपने बेटे की मौत के बाद मेरे लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। अब रह भी क्या गया है इस संसार में मेरे लिए, चुनाचा। और ये कहकर आए गुरुदत्त ने रिवाल्वर की नाल अपनी कंपटी पर रखी और ट्रैगर दबा दिया। इस तरह दोनों बाप बेटा खत्म हो गए। संगीत और अमर सिंह हवेली और जायदाद के सिलसिले में झगड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे को हलाक कर दिया। यशोदा और कलावती बेवाओं के सियत से जिंदगी गुजारने लगी और हवेली बिक गई और दोनों वहां से शहर मुंतकिल हो गईं। उसके बाद रूपा का यहाँ कोई काम नहीं था, चुनाचे वो वापस अपने घर चल पड़ी जहाँ उसकी बाकी बहनें वक्त गुजार रही थीं। माहरीन की टीम दिन रात पहाड़ों का सर्वे कर रही थी और मुख्तलिफ टोलियाँ थीं जो मुख्तलिफ जगहों में फैल जाती और ज़मीन के बेशुमार नमूने जमा किए गए। उनका तज्जिया किया जा रहा था और फाइनल रिपोर्ट तो दारुल हुकूमत से मिलने वाली थी, लेकिन ये लोग इसमें भी गुफ्तगू करके अपनी तहकीक का निचोड़ पेश करते रहते। उनका हेडक्वार्टर डिस्पेंसरी की इमारत में ही था, क्योंकि इस पूरे इलाके में अभी तक उससे उम्दा इमारत तामीर नहीं हुई थी और यहाँ पर ज़िंदगी की सारी सहूलतें मुहैया कर दी गईं और रात को अच्छी खासी नशस्त रहती थी। डॉक्टर फरागी भी उनकी महफिलों में शिरकत करता और बिलाशुबा वो बेहद शरीफ तबा नौजवान था, हमदर्दी के कुदरती जज्बात से माला माल, और उसकी उन लोगों से खूब दोस्ती हो गई और इस तरह से वो उनका मेज़बान भी था। इस वक्त भी काफ़ी की प्यालियाँ सबके सामने थी और मौसम की खनकी ने उसका लुत्फ़ दोबाला कर दिया। सब उसी लाइन की दिलचस्पी की गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, लेकिन डॉक्टर फरागी की निगाहें आज भी बार बार खामोश और खोए हुए नजर आने वाले सज्जाद पर लगी हुई थी, जो आम दिनों की तरह आज भी किसी सोच में डूबा हुआ था। और इन लोगों को यहाँ से आए हुए पूरे 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में हर रात नशस्त होती और ये इलाका मौजू गुफ्तगू रहता, लेकिन फरागी ने आज तक सज्जाद को कुछ कहते हुए नहीं सुना और सब गुफ्तगू करते और सज्जाद सिर्फ सुनता। लेकिन आज रात यूँ लगता था जैसे सज्जाद कुछ बोलने का इरादा रखता हो, और ये इत्तफाक ही था कि आज कर्नल रतन चंद ने भी उसे मुखातब कर लिया। मैंने खास बात महसूस की है मिस्टर सज्जाद, बराह करम आप मुझसे मुखातब होंगे। और क्यों नहीं कर्नल, फरमाइए, सज्जाद ने नरम लहजे में कहा। मैंने महसूस किया है कि आप हमेशा
मशरक़ की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरे तमाम लोग अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में छानबीन करते रहते हैं। और उसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ कर्नल, इत्तेफाक से आपने पूछ लिया और आज ही मैं अपने तौर पर कुछ इंकशाफात करने का इरादा रखता हूँ। ओहो, वाकई ये दिलचस्प बात है। और कर्नल ने मुस्कुराकर दूसरों की जानब देखा। अंदाज ऐसा था जैसे वह सजाद का मजाक उड़ाने और दूसरों को उसमें शिरकत की दावत देने का इरादा रखता हो। चंद लोग मुस्कुरा दिए और रतन चंद का अंदाज ऐसा नहीं था जिसे सब ने महसूस ना कर लिया हो, और यहाँ तक कि खुद सजाद ने भी। लेकिन सजाद के चेहरे की हलीमी रुखसत ना हुई। अब सब लोगों की बातों से मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि आप इस इलाके के बारे में बहुत पुरउम्मीद हैं, यानी जो काम हुकूमत ने आपके सपुर्द किया है उसके बारे में आप कहना चाहते हैं कि इस इलाके की फ़िज़ा बेहद मौजूद है और हुकूमत अपने मंसूबे यहाँ पर शुरू कर सकती है। और क्या आपको इस पर इख्तलाफात है मिस्टर सज्जाद? आपके ख्याल में यहाँ पानी आसानी से मिल जाएगा और इस ज़मीन में सब्ज़ा उगाने की बेइंतहा सलाहियत मौजूद है। नीज़ यहाँ पुख्ता इमारतें भी बखूबी बनाई जा सकती हैं। सज्जाद ने सवाल करने वाले के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ, हमारी नाक़िस राय तो यही है, लेकिन बदकिस्मती से मैं कल हुकूमत को खौफनाक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। सज्जाद ने जवाब दिया, इनफरादी रिपोर्ट? हाँ, क्योंकि ये मेरी खालस तहकीक है और मुझे यकीन है कि आप लोग मुझसे इसके बारे में तावन नहीं करेंगे। बराह करम इस रिपोर्ट की नोयत ज़रूर बताएं मिस्टर सज्जाद, जूफर ने कहा, और ये किसी कदर संजीदा इंसान था। मेरी राय है कि ये इलाका बारूद का ढेर है और जिस पर किसी किस्म की इंसानी आबादी का वजूद नहीं रह सकता। किसी भी लम्हे ज़मीन फट सकती है और पकते हुए पत्थर फूट कर बाहर निकल सकते हैं। एक वसी और अरीद इलाके के ज़मीन में अंदर ही अंदर एक रूही है और यूँ लगता है जैसे ये लावा साल हा साल से, मुमकिन है कि कई सदियों से पक रहा हो और अब इसमें नाकाबिल बर्दाश्त हिद्दत पैदा हो गई है। ज़मीन की मोटी तय अब इसे ज़्यादा अरसे कैद नहीं रख सकती और गैस रास्ता तलाश कर रही है। वाह, आप बेहद खौफनाक गुफ्तगू कर रहे हैं मिस्टर सज्जाद। आपकी आवाज़ में बेहद ड्रामाई तासर है, लेकिन आप इस संजीदगी से मजाक भी कर सकते हैं और हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने हकीकत अर्ज की है, सज्जाद ने संजीदगी से कहा। इस बस्ती की तारीख मालूम है आपको? ज़रूर होता है कि हम किस जगह काम कर रहे हैं वहाँ सिर्फ अपने काम से काम ना रखें, बल्कि उन लोगों के बारे में भी ज़रूर मालूमात हासिल करें जहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या मुराद है आपकी? सिर्फ ये कि हमारी मालूमात के मुताबिक ये लोग साल हा साल से यहाँ आबाद हैं और इनकी पुश्तें यहाँ ज़िंदगी गुजारती आई हैं और यहाँ ऐसी कोई रवात नहीं जिससे किसी आतिश फशां की निशानदही होती हो। इसके अलावा यहाँ की ज़मीन पर ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते जिससे अंदाज़ा होता हो कि कभी यहाँ आतिश फशानी हुई हो। शायद मिस्टर सज्जाद किसी नामानूस ज़मीन पर निकल गए हैं, मैं नहीं समझता। और आप लोगों ने मेरे बयान पर कहाँ सुबकी महसूस की, हालांकि मैंने नहायत खलूस से अपनी मालूमात आप तक पहुँचाई हैं और मैं पाबंद नहीं हूँ इस बात का कि अपने राय का इजहार ना कर सकूँ। मैंने एक तहकीकी बात कही है और आप भी मेरी लाइनों पर काम करें और मेरी राय के बारे में अंदाज़ा लगाएं। हम अपनी मालूमात के मुताबिक मुतहम्मिन हैं सज्जाद साहब। ठीक है, मैं इसके लिए भी आपको मना नहीं कर सकता। और सज्जाद खामोश हो गया। फिर वो ज़्यादा देर तक उस नशस्त गाह में ना बैठ सका और उन सब से माजरत करके उठ गया। लेकिन उसके बाद डॉक्टर फरागी भी उनके साथ ना बैठ सका था और चंद मिनट के बाद वो भी अपनी जगह से उठ गया। उसका रुख सज्जाद के कमरे की तरफ था और सज्जाद ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, लेकिन अंदर तेज़ रोशनी थी जिससे अंदाज़ा होता था कि सज्जाद सोने के लिए नहीं लेटा, वो जाग रहा है। और तब फरागी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? अंदर आ जाइए। और अंदर से सज्जाद की आवाज़ सुनाई दी और फरागी ने दरवाजे पर दौर आजमाई की। गोया उसका अंदाज़ा गलत था और सज्जाद ने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। फरागी अंदर दाखिल हो गया और सज्जाद उसे देखकर खलूस से मुस्कुरा दिया। आइए डॉक्टर फरागी, आपकी आमद से मुझे खुशी हुई। और उसने पुरतपाक लहजे में कहा, शुक्रिया। और चौंके मेरा तलक आपके पेशे से नहीं, इसलिए मुझे आपसे कोई रकाबत भी नहीं है, जैसा कि मैंने उन लोगों के अंदाज में पाई थी। और फरागी मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि रकाबत की ज़रूरत उन्हें भी नहीं थी,
लेकिन उन्हें मेरी मुनफरिद रिपोर्ट नागवार गुजरी है और वैसे आपकी रिपोर्ट बेहद खौफनाक है। और फरागी ने झुर्झुरी लेकर कहा, दुरुस्त, लेकिन मैं अपनी तहकीक पर शक में गिरफ्तार भी नहीं हूँ और मेरा ख्याल है कि अनकरीब इस बस्ती में तबाही फैलेगी और मेरे अंदाजे के मुताबिक ज़मीन की हिद्दत आखिरी मरहल से भी गुजर चुकी है और अब लावा बाहर निकलने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा है। तुम्हारे ख्याल में सज्जाद, इस अमल में कितना वक्त लग जाएगा? अफसोस, मैं वक्त की सही निशानदही नहीं कर सकता, सज्जाद ने जवाब दिया। और फरागी किसी गहरी सोच में डूब गया। वो नेक इंसान था, वो इतने अरसे बस्ती में रहा और उनके दुख मुख में शरीक था, लेकिन उसने कभी आतिश फशानी की कहानी नहीं सुनी थी। लेकिन इसके बावजूद एक डॉक्टर होने की हैसियत से वो इंसानी ज़िंदगी से बेपनाह हमदर्दी रखता था और फिर उस हरी भरी बस्ती की कोई मुसीबत उसे कबूल ना थी। चुनाचा थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मिस्टर सज्जाद, क्या बात है जनाब? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूँगा कि मेरी तहकीक गलत नहीं, लेकिन इस तरह हमारे ऊपर कुछ फ़र्ज भी आयद होते हैं। मसलन, आपके ख्याल में इस बस्ती की आबादी कितनी होगी? 10,000 से ज़्यादा। क्या आतिश फशानी से उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक नहीं हो सकता? यकीनी अमर है। और ऐसी सूरत में क्या हम लोग उन्हें इस आफत से होशियार नहीं कर सकते? कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, हमारे ऊपर फ़र्ज है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बस्ती वालों को इस मतवक्का आफत से होशियार कर दूं, उनसे कहूं कि वह पूरी तरह होशियार रहें और अपन नोटिस पर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ें। मेरे ख्याल में ये एक नेक काम होगा, सज्जाद ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बशर्ते कि बस्ती वाले हमारी बात पर काम धरें। वो हमारी बात सुने या ना सुने, लेकिन हमें अपने फ़र्ज की अदायगी में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, मैं कह चुका हूँ कि ये अच्छा काम होगा। और क्या इस काम में, अच्छे काम में आप मुझसे तावन करेंगे? बताइए, आपको मेरा किस किस्म का तावन दरकार है? मैं चाहता हूँ कि कल मेरे साथ आप भी शरीक हों और उन लोगों को इसके बारे में बताएं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं इनकार नहीं करूँगा, सज्जाद ने कहा और डॉक्टर फरागी ने उसका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन वो इस मुहिम पर निकल पड़े, लेकिन बस्ती में जाकर उन्हें बेहद मायूसी हुई। बमुश्किल तमाम उन्होंने चंद लोगों को जमा किया और अपना माजी ज़मीर उन्हें बताया। उनमें से चंद बूढ़े मुखालफ भी शामिल थे। खूब, और कौन सी तबाही की निशानदही कर रहे हो तुम लोग? तबाही का तयन तो हमने तुम्हारे यहाँ कदम रखने पर ही कर लिया था। और एक बूढ़े ने तंदिया अंदाज में कहा, मेरी ख्वाहिश है जनाब कि आप अपनी बस्ती को ये पैगाम दे दें। फरागी ने कहा, अफसोस, तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी डॉक्टर, और तुम इस तरह ये बस्ती खाली कराने की कोशिश में हो, लेकिन हम अपने बाप दादा की ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हमारी ये ख्वाहिश नहीं। क्यों झूठ बोलते हो? जाओ अपना रास्ता नापो और हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। बस्ती वालों को हम अपना ख्याल बनाने में उन्हें शदीद नाकामी का मुंह देखना पड़ा और सज्जाद ने नहायत खलूस से आखिरी वक्त तक डॉक्टर फरागी का साथ दिया था और वापसी पर फरागी काफ़ी अफसरदा था। अफसोस कि वो हमारे हम ख्याल ना हो सके और ये काम था भी मुश्किल डॉक्टर, सज्जाद ने मुतफक्काना अंदाज में कहा, लेकिन इससे ज़्यादा हम और कर भी क्या सकते हैं? हाँ, बिलाशुबा हम इतने अफराद की ज़िंदगी किसी तौर पर नहीं बचा सकते। दोनों डिस्पेंसरी पहुंच गए और यहाँ सारे लोग अपने काम से फारग होकर वापस आ गए और खूब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मिस्टर सज्जाद, क्या आपने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को रवाना कर दी? और हाँ, आज तो डॉक्टर फरागी भी आपके साथ थे। और क्या आपने मिस्टर फरागी को आतिश फशां का दहाना दिखाया था? रतन चंद ने पूछा। अफसोस, आज इन दिनों कोई कामों में से कोई काम नहीं किया जा सका। और सज्जाद ने खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए कहा, फिर गौर कर लें मिस्टर सज्जाद, हुकूमत को परेशान करने से नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन उसका आफादी पहलू भी है। सज्जाद ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या? मुमकिन है हुकूमत मेरी रिपोर्ट पर कोई बाकायदा मिशन रवाना कर दे जो आकर मेरी बात की तस्दीक कर दे, सज्जाद ने जवाब दिया। ओह, लेकिन क्या नुकसान पर भी गौर किया है आपने? रतन चंद ने कहा। नहीं, बराह करम आप मेरी रहनुमाई करें। अगर हुकूमत वाकई आपकी रिपोर्ट पर संजीदा हो गई, जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये यकीनी अमर है कि वो हमसे भी राब्ता कायम करेगी और अब उसे भी जवाब देंगे। और क्या ये सिर्फ मिस्टर सज्जाद की ज़ाती राय है जिससे हम मुतफ़िक नहीं? और उसके बावजूद अगर हुकूमत ने अपने इत्मीनान के लिए कोई टीम रवाना कर दी तो आपकी क्या पोजीशन होगी? निहायत महफूज। मुमकिन है कि उस टीम में से कुछ संजीदा लोग भी शामिल हों, सज्जाद ने पहली बार बुरा मानने वाले अंदाज में कहा।
और उसके बाद वो हस्बे मामूल दूसरे कमरे में चला गया। डॉक्टर फरागी भी चौंका। आज पूरा दिन मसरूफ रहा था, इसलिए थकन महसूस कर रहा था और खाना वगैरह खाकर वो भी आराम करने चल दिया और आज वो उन लोगों की महफिल में शरीक होना नहीं चाहता था। बिस्तर पर लेटने के बाद वो गहरी सोच में डूब गया। सज्जाद की बात का किसी ने मजाक उड़ाया था, लेकिन खुद फरागी इस बारे में संजीदगी से गौर कर रहा था। उसके दिल में खौफ का अंसर नहीं था और बस वह सज्जाद की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सका था। वो दूसरों की तरह उसे सरसरी तौर पर नहीं ले रहा था। अगर सज्जाद की बात दुरुस्त निकली तो ये बस्ती यकीनी तौर पर तबाह हो जाएगी और उसके लोग अफसोस कि मैं उन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उन लोगों की आंखों पर तअस्सुब का गिलाफ चढ़ा हुआ है। और डॉक्टर का ज़हन काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा और फिर थकन की वजह से उसे नींद आ गई। आसमान पर सरे शामी बादल छा गए थे, गहरे स्याह बादल। उस इलाके में अक्सर बारिशें होती रहती और बहरहाल बारिश कहीं भी खुशगवार महसूस होती है, लेकिन ना जाने क्यों फिजा में घुटन सी थी और चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी। सितारे भी बादलों के दबीस लहाफ में दुबके हुए थे और उनकी कोई रमक नजर नहीं आ रही थी। बूढ़े को कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई। वो जाग रहा था और अजीब अजीब ख्यालात थे जो उसे जगा रहे थे। हालांकि उसकी ज़िंदगी के सारे मकासद पूरे हो गए थे और हर मरहले से गुजर चुका था। वो अब उसके 4 बेटे थे। 2 बेटियां थी जो इसी बस्ती के मुख्तलिफ घरों में ब्याही गईं और चारों बेटे भी शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे और खूब रौनक थी। उनके बड़े घर में बेटे उसकी खिदमत करते थे और बेकौल शख्स से वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा था। ऐसे दिनों में नींद न आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और ना जाने क्यों उसे एक घुटन का सा एहसास होने दे रहा था। उस घुटन में खौफ की आमिज़श भी थी और इससे कबल बूढ़े ज़र खान को कभी खौफ नहीं महसूस हुआ था। उसने गहरी सर्द सांस ली और अपने बिस्तर पर करवट बदलकर सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। अब तो मुझे नींद आ ही जानी चाहिए, उसने कहा और उसी वक्त यूं लगा जैसे आसमान ज़मीन पर गिर पड़ा हो। दोनों पाश पाश हो गए हों और उसके बाद एक मफलूज कर देने वाला धमाका हुआ और धमाके के बाद एक सनसनाहट, एक ऐसी खौफनाक सनसनाहट जो कानों के पर्दे फाड़े दे रही हो। यूं लगता था जैसे कोई रकीक चीज़ या तेज़ हवा कहीं से खारिज हो रही हो, लेकिन उस बेपनाह कुव्वत के साथ जिसका अंदाज़ा मुश्किल था। खौफनाक धमाके से बहुत कुछ हुआ और बस्ती के दर्जनों मकानात गिर गए। बेशुमार इंसानों की हरकत कल्ब रुक गई और बेशुमार गिरे हुए मकानात के नीचे दब गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे और उनकी दिल हला देने वाली चीखें गूंज रही थी। लेकिन खौफनाक सनसनाहट की आवाज़ में ये सारी आवाज़ें दब कर रह गईं। यूं लगता था जैसे करोड़ों इंजन एक साथ स्टीम छोड़ रहे हों और सीटियां बजा रहे हों। उसकी आवाज़ से रहे सहे आवाज़ भी गुम हुए जा रहे थे। जो लोग घरों में थे वो चीखते हुए बाहर भाग रहे थे और बेमकसद कुछ सोचे समझे बगैर। और बूढ़ा ज़र खान सोच रहा था कि क्या हुआ, आखिर ये क्या हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और खुद उसके घर के हवास बाख्ता लोग भी घर से बाहर निकल भागे, लेकिन किसकी मंजिल कहाँ थी और कौन कहाँ भाग जाना चाहता था ये किसी को मालूम ना था। चारों न चार वो भी बेतुके अंदाज में मुंह उठाकर भागने वालों में शामिल हो गया। फरागी भी सो गया था, लेकिन धमाका इतना शदीद था कि चंद सेकंड के लिए उसके असाब भी जवाब दे गए और वह अपनी मर्जी से हाथ पांव भी ना हिला सका। लेकिन उस धमाके की जैसी तेजी आवाज़ ने हवास जगा भी दिए और बेमुश्किल वो तमाम उठ सका। उसके ज़हन में एक ही ख्याल आया कि सज्जाद की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। दूसरे लम्हे उसने बदन पर गाउन डाला और यहाँ से निकल भागा और उसका रुख सज्जाद के कमरे की तरफ था। सज्जाद उसे कमरे के दरवाजे पर खड़ा नजर आया और वह बेचैनी से हाथ मल रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं और मैंने तो लोगों को आगाह करने की मुखलसाना कोशिश की थी। ये तो सब कुछ वही है। और फरागी ने खौफजदा अंदाज में पूछा, हाँ आओ, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ और हम छत पर चलकर देखेंगे। और क्या तुम खुद में हिम्मत पाते हो? सज्जाद ने पूछा। चलो, लेकिन वो लोग। फरागी, बराह करम इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचो और मैं उनसे अपना मज़का उड़ाने का इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्हें अपने तौर पर जद्दोजहद करने दो। आओ, सज्जाद ने कहा और फरागी के साथ छत पर पहुंच गया। वो देखो, और वो स्याह गुबार जो आसमान की तरफ बुलंद हो रहा है। और वो क्या है? फरागी ने पूछा। पीसे हुए पत्थरों का बरादा और गैस ने ज़मीन तोड़ दी है और ये तड़ाका उसी का था। और अब लावा ऊपर की जान उबर रहा है और वह हर चीज़ खाली कर रहा है और उस दहाने से फूट पड़ेगा। और फिर अब क्या किया जाए?
जान बचाने की ख्वाहिश है फरागी, सज्जाद ने पूछा। क्यों नहीं, लेकिन दूसरे लोग? फरागी इस वक्त भी हमदर्दी के जज्बात से आरी नहीं था। अफसोस कि हम दूसरे लोगों के लिए अब कुछ नहीं कर सकते, और अगर ये लोग हमसे तावन करते तो हम लोग उनके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उन्हें मुफीद मशवरे दे सकते, लेकिन अब उनके लिए कुछ करने का ख्याल खुद को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। आओ फरागी, और यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। चलो, फरागी मायूसी से बोला। हर चंद के वो लोग अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार थे, और उन्होंने फरागी और सज्जाद की बात ना मानकर उन पर आवाज़ें भी कसी थी, लेकिन फरागी उनके लिए अफसरदा था और बरक रफ्तारी से नीचे आ गए। यहाँ रतन चंद और दूसरे तमाम लोग सरासीमा दौड़ रहे थे और उनके चेहरों पर उदासी थी। सज्जाद, मिस्टर सज्जाद, हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं, हाशिम खान बोला। आओ, मैं हाजिर हूँ, सज्जाद ने सुकून से कहा। यह सब क्या हुआ? शायद किसी मुल्क ने एटमी धमाका किया है, सज्जाद मुस्कुराकर बोला। ओह मिस्टर सज्जाद, प्लीज, ये जमीन का मजाक है और मेरा तो यकीन है, सज्जाद ने कहा। और तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला सज्जाद। एक और पेशगोई करूंगा, और अगर आप लोगों ने फौरी तौर पर यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की तो फिर कोई आप लोगों को नहीं बचा सकेगा। आओ फरागी। सज्जाद ने फरागी का हाथ पकड़ा और डिस्पेंसरी के बैरूनी गेट की तरफ दौड़ पड़ा। सब लोग हक्का बक्का रह गए, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त मुड़कर यह देखने की कोशिश नहीं की कि दूसरे लोगों की क्या कैफियत है। वैसे कुछ लोग उनके पीछे ही दौड़ पड़े थे, और डिस्पेंसरी के गेट से निकलकर सज्जाद चंद साथ के लिए रुका और फिर उसने एक तरफ का रुख अख्तियार कर लिया। तेजी से दौड़ो फरागी, और कोई भी लम्हा आतिश फशां बन सकता है। अब फरागी को दौड़ने में कोई आर नहीं था, और बात सिर्फ अपनी जिंदगी थी, और दूसरों की जिंदगी अब वो नहीं बचा सकता था, इसलिए अब उसके अंदाज में कोई हचकचाहट ना थी। वो बेतहाशा दौड़े, और ये रास्ते फरागी के देखे हुए थे। वह सज्जाद की मदद भी कर रहा था, और सज्जाद की निगाह उससे अब बादल की जानब भी थी, और वह बार बार मुड़कर उसे देखने लगता। और फिर वह एक बुलंद जगह रुक गए, और सज्जाद ने उसे रोका था। रुक क्यों गया सज्जाद? फरागी ने पूछा। मैं अब तक अंदाजे से दौड़ता रहा था, और हमने अपनी दानस्त में एक ऐसा रुख इख्तियार किया है जो हमारे लिए महफूज है, लेकिन इसके बावजूद लावे की सिमत का अंदाज़ा ज़रूर लगाना है। वो समझ गया। लावा बह निकले तो हम उसकी मुखालफ सिमत में भागेंगे, और कोई नहीं कह सकता कि उसका रुख किस तरफ हो। ऐसा ना हो कि वह हमारा ताक़ब करे। हाँ, ये भी ठीक है, फरागी ने जवाब दिया, और फिर वो तारीकी में उठते हुए स्याह गुबार को देखते रहे जो तारीकी में तहलील हो रहा था, और कान फाड़ देने वाली आवाज़ के साथ फिजा में बुलंद हो रहा था, और उसका हजम बेहद वसी था। वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में फैलता गया, और फिर उस गुबार में सुर्ख ज़बानें भी लपकने लगीं, और सज्जाद ने एक गहरी सांस ली। देखा तुमने? और उसने फरागी के शाने पर हाथ रखकर कहा। हाँ, ये स्याह गुबार में सुर्ख निशानात, ये आग के निशानात हैं। ओह, आग? हाँ, लावा दहाने तक पहुंच चुका है, और अब ये सारा गुबार खत्म हो जाएगा। गोया गैस खारिज हो चुकी है। हाँ, सज्जाद ने जवाब दिया, और फरागी सहमी हुई निगाहों से उस अजीबो गरीब मंदिर को देख रहा था जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना ही था, और उसने किसी आतिश फशां को आग उगलते हुए नहीं देखा था, और ना ही उस आतिश फशां का कोई बाकायदा दहाना था। बस जमीन फूट कर स्याह गुबार निकल पड़ा, और बहुत खौफनाक बात थी। सज्जाद ने किस कदर दुरुस्त अंदाजा लगाया था, और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वो सब लोग इस वक्त कितने शर्मिंदा हो रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बस्ती वाले क्या करेंगे, और फरागी का दिल अब भी उनके लिए दुख रहा था। वो जानता था कि बस्ती के लोग इतनी तेजी से जान नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई तैयारियां नहीं की थी। उन्हें खतरा ही खतरा था, और ना वो अपना सामान ले सकेंगे और ना ही अपने बच्चों को संभाल सकेंगे। कितनी मासूम जानें ज़ाया हो जाएंगी, लेकिन इसमें गलती उनकी भी ना थी, और उन्होंने तो उन्हें समझाने की कोशिश की थी। फरागी ये ख्यालात दिल में रखे हुए उन सुर्ख ज़बानों को देख रहा था जो अब चिंगारियां छोड़ने लगी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आतिशबाजी हो रही हो। सुर्ख और खौफनाक आतिशबाजी, और जिसका हजम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और देखते ही देखते खौफनाक मंजर निगाहों के सामने आ गया। पिघले पत्थर जिनसे भाप उठ रही थी पानी की शक्ल में ज़मीन पर उबलने लगे, और एक लावा एक सिमत बहना शुरू हो गया। भागो, सज्जाद ने कहा, और उन्होंने दूसरी सिमत इख्तियार करके भागना शुरू कर दिया, और लावे का फैलाव इंतहाई तेज था। लावा चारों तरफ फैलता जा रहा था, और जिस तरफ फैल रहा था वहां मौजूद हर चीज खाकसर हो रही थी। नहीं कहा जा सकता था कि इतनी तेजी से फैलता हुआ लावा कब उनके कदमों के नजदीक पहुंच जाएगा। वो तेजी से दौड़ रहे थे, और पीछे दौड़ने वालों की आवाज़ें और चीखें भी सुन रहे थे, और बहुत से लोग लावे की लपेट में थे,
और सुर्ख लावा उनके बदन को आलसी डब्बे में तब्दील कर चुका था। सज्जाद और फरागी भागे जा रहे थे और उन्होंने कुछ और लोगों को भी देखा जो उनके भी आगे निकल गए। बस्ती वाले चीखते चिल्लाते दौड़ रहे थे और चारों तरफ से उन पर क़यामत टूट पड़ी थी। फरागी ने अब आंखें बंद कर ली और उन्हें कुछ सोचना छोड़ दिया। बस वो बेतहाशा दौड़ रहे थे और ठोकरें खाते हुए गिरते हुए। सज्जाद उसके साथ था और सज्जाद की जहानत ने उस वक़्त इंतहाई अहम कारनामा अंजाम दिया था और ये फरागी खुद अपनी जान भी बचा नहीं सकता था। इस वक़्त वो बस्ती वालों का गम भूल गया और हर शख्स फितरी तौर पर अपने आप को बचाने का ख्वाहिशमंद था। फिर वो एक दर्जे में पहुंच गए और दोनों तरफ नींद और बुलंद बाला पहाड़ थे और उन पहाड़ों में स्याह धब्बे नजर आए जो यकीनी तौर पर गारों के दहाने थे। और वह दर्रे में दौड़ते रहे और खासा तंग दड़ा था जिसमें बहुत कम लोग दौड़ रहे थे और वैसे उन्होंने महसूस किया कि कुछ दौड़ने वाले उनसे आगे निकल गए हैं। और ये बात अच्छी बात थी कि उन लोगों ने अपनी मदद आप करने का फैसला कर लिया और अब ना जाने ये बस्ती के लोग थे या वो सर्वे नीम के लोग जो यहाँ सर्वे करने आए थे। दफतन एक खौफनाक गड़गड़ाहट हुई और ज़मीन हिलने लगी। वो लोग बुरी तरह लड़खड़ा कर नीचे गिरे और फिर उन्होंने अपने सरों पर बुलंद आवाज़ें सुनी। दो पीकर पत्थर अपनी जगह छोड़ रहे थे और दर्रा इतना तंग था कि पत्थर सीधे उनके सरों पर आते। ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी और सज्जाद ने दहशतज़दा अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर उसने फरागी को इशारा किया। वो दोनों बादल नाखवास्ता एक गार के दहाने की तरफ दौड़े और मुमकिन है कि गार अंदर से साफ सुथरा हो और मुमकिन है कि ऊपर का पहाड़ मजबूत हो और उन्हें कहीं निकल जाने का मौका मिल जाए। दोनों बेतहाशा गार की तरफ दौड़ने लगे और बहुत से पत्थर उनके नज़दीक आकर गिरे। बस जिंदगी थी जो बच गए और वैसे उन्होंने पीछे आने वाले पत्थरों में दबने की आवाज़ें भी सुनी थी। गोया बेपनाह तबाही फैली थी, खौफनाक तबाही। वो गार के दहाने में छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गए और पत्थरों से तो उनकी जान बच गई। ज़मीन हिल रही थी जैसे बच्चे को पगोड़े में डालकर हिलाया जाए और वो उठने की कोशिश कर रहे थे। गड़गड़ाहटें जारी रहीं और जलजला आता रहा और हल्की हल्की भाप की आंच भी यहाँ तक पहुँचती रही। गोया लावा बहता हुआ उस सिमत में आ निकला है और खौफनाक तबाही फैली होगी। उस तबाही के तस्वर से उनके जहन में सुन्न हुए जा रहे थे और ना जाने कब तक वो ज़मीन पर पड़े उसी तरह पड़े रहे। और फिर अचानक ऐसा सकूत छा गया जैसे एक खौफनाक तूफान अचानक थम गया हो और कान साएं साएं कर रहे थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से उछल कर बाहर आ जाएगा। और अब गार में कोई आवाज़ नहीं थी, सब खामोश थे। फरागी और सज्जाद खामोशी से अपनी जगह लेटे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें खतरा था कि लावा कहीं गार के अंदर दाखिल ना हो जाए। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो गार के दहाने तक जाकर बाहर का मंजर देखते और जल्जले के खौफनाक झटके बंद हो चुके थे। काफ़ी देर से नया झटका नहीं लगा और तब फरागी ने बड़ी मुश्किल से ज़ुबान हिलाई। उसने सज्जाद को पुकारा था, हाँ मैं होश में हूँ फरागी, हवास को कायम रखना सज्जाद, वरना माहौल हवास खो देने वाला है। मैं इतने कच्चे दिल का नहीं, सज्जाद ने जवाब दिया और फरागी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। फिर जब काफ़ी देर हो गई तो फरागी ने आहिस्ता से कहा, सज्जाद महसूस होता है कि जल्जला रुक गया है। कुछ नहीं कहा जा सकता फरागी, और झटके फिर आ सकते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और सदियों से रुका हुआ लावा ना जाने कब तक बहे और वो ज़मीन तोड़कर जब बाहर निकलेगा तो ज़ाहिर है कि धमाके होंगे और ज़मीन हिलेगी। फिर तो इस पहाड़ का भी अपनी जगह कायम रहना मुश्किल है। और फरागी इन बातों को मत सोचो और ज़िंदगी बहर सूरत एक बार ख़त्म होनी है। उसे ख़त्म होना है तो हो जाए और हम उसे नहीं रोक सकते। और बहर सूरत हमने अपने तौर पर ज़िंदगी बचाने की कोशिश की है, बाकी हमारे हाथ से बाहर की बात है। ठीक है मेरे दोस्त, और ये लेकिन ये तपश ये धुआं कैसा है? सज्जाद ने आहिस्ता से कहा, और मेरे दोस्त तुम इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। क्या मतलब? मुझे यकीन है कि बहता हुआ लावा अब इस दर्रे में पहुंच चुका है और जिसमें इस गार का दहाना है, और ये भी मुमकिन है कि वो थोड़ी देर के बाद इसके गार के दहाने तक पहुंच जाए। जलते हुए पत्थर हमारे जिस्मों का क्या हाल करेंगे? फरागी ने परेशान लहजे में कहा। बिल्कुल यही कैफियत होगी जैसे तनूर में रोटी लगा दी जाती है, सज्जाद ने हल्के से तमस्कराना अंदाज में कहा और फरागी हैरान निगाहों से उसकी जानब देखने लगा। हालांकि तारीकी की वजह से उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकता था। और सज्जाद ने ये जुमले तमस्कराना अंदाज में कहे हैं।
गोया ये चट्टानवार आदमी इस वक्त भी मजाक की हिस्स रखता है और फरागी को खुद पर शर्म आने लगी। वो इस कदर खौफजदा क्यों है? और आखिर सज्जाद भी तो इंसान है और वो भी तो दूसरों की मानव जिंदगी से मोहब्बत रखता है। चुनाचा इस बात ने फरागी के ज़हन से भी काफी हद तक बेदारी पैदा की। क्या बात है फरागी, तपश बढ़ती जा रही है। हाँ, शायद लावा गार के दहाने की तरफ बढ़ रहा है, फिर हमें कोई और कोशिश करनी चाहिए। बेकार होगी फरागी, सज्जाद ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों, आखिर क्यों? पिघलते पत्थरों के सैलाब में क्या हम अपनी जान बचा सकेंगे? और अगर वो हमारे जिस्मों तक ना पहुंचे तब भी? हाँ तब भी, क्योंकि उससे उठने वाली गैसें हमारा दम घूंट देंगी। और फिर कुछ नहीं फरागी, परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। मैं समझ गया हूँ। और फरागी ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर बोला, तब आओ हम देखें तो सही लावा कितनी दूर तक पहुंच चुका है और गार की तरफ बढ़ने की रफ्तार क्या है। अब सज्जाद की हैरानी की बारी थी। बहर सूरत उसने भी इस दिलचस्प मंजरों को निगाहों से खोना पसंद ना किया। उठो, उसने आहिस्ता से फरागी से कहा और वो दोनों उठ गए। दोनों ज्याले गार के दहाने की तरफ बढ़ गए और अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके चेहरे रोशन हो गए हैं और गार में रोशनी फैल गई और ये रोशनी जलते हुए सुर्ख पत्थरों की थी और वो दोनों खौफ से सहम गए, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े मजबूती से आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक के गार के दहाने पर पहुँच गए। किसी भी लम्हे उन्हें इंतजार था कि खौलता हुआ लावा उनके जिस्मों से आ चिपकेगा और वो जल कर भस्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जब बाहर का मंजर देखा तो उनके जिस्म लर्ज गए। लावा किसी तेज रफ्तार नाले की मानद बह रहा था और गार का दहाना काफी ऊंचा था। गोया इस बात का इम्कान था कि फिलहाल उस वक्त तक वो गार के दहाने तक ना पहुंचे जब तक इस सैलाब का जोर ना बढ़ जाए और खोलते हुए पत्थर हर चीज को खाक सर करते हुए आगे बढ़ रहे थे और रोशनियों ने पहाड़ों को मुनव्वर कर दिया था। अजीब भयानक मंजर था और जिसको देखकर जहन में पर काबू रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। और वो खामोश खड़े लड़ते रहे और लावा बहता रहा। उसकी तपश उनके जिस्मों तक पहुंचती रही और उनके बदन पसीने से तर हो गए। तब सज्जाद ने गहरी सांस ली और फरागी भी चौंक पड़ा। क्या बात है सज्जाद? फरागी ने लरसते हुए लहजे में पूछा। और फरागी, मुमकिन है कि लावा इस गार के दहाने तक ना पहुंच सके। हाँ, अभी वो काफी नीचे बह रहा है और उसकी मिकदार बढ़ती हुई महसूस नहीं हो रही, फरागी ने कहा। और दरअसल ये लावा बाकायदा किसी चोटी से नहीं बहा बल्कि जमीन के दहाने से फूट निकला है, इसीलिए इसने चारों तरफ फैलाव इख्तियार कर लिया है। और अगर ये किसी चोटी से बहता तो उसका रुख एक तरफ होता और वो सिमत जो भी होती वहां उस पर उसकी मिकदार बेपनाह होती। गोया ये तो अच्छी बात है और खुदा करे कि इसका रुख बस्ती की तरफ ना हुआ हो। बस्ती की तरफ? और सज्जाद ने गहरी सांस ली। हाँ क्यों? बात फरागी, तुम डॉक्टर हो और तुमने महसूस नहीं किया क्या बस्ती किस कदर नशीब में थी और तुम्हें अंदाजा है? ओह, गोया तुम्हारा मतलब है कि लावा बस्ती की तरफ जरूर बहा होगा। हाँ मेरे दोस्त, मेरा यही मतलब है, सज्जाद ने जवाब दिया। और फरागी के चेहरे पर तासुफ के आसार झलक रहे थे। अपनी जिंदगी बचने की उम्मीद पैदा हो गई थी और इसलिए उन लोगों का गम फिर सीने में उभर आया था और उन लोगों के बारे में सोच रहा था। खौफनाक लाग लावा बहता रहा और वह खड़े हुए उस सुर्ख सैलाब को देखते रहे। दफतन गड़गड़ाहट फिर पैदा हुई और ये दोनों गार के किनारे से गिरते गिरते बचे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने जिस्मों में तवाज़ुन पैदा किया था और जरा सी लग्जश से वो खोलते हुए पत्थरों पर जा पड़ते। बड़े बड़े पत्थर फिर अपनी जगह छोड़ गए और वो आग के पानी में गिरते तो सुर्ख लावा काफ़ी ऊंचा उछल जाता और उससे उसकी शिद्दत का अंदाज़ा होता था। वो दोनों काफ़ी पीछे हट गए और कदमों पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। ज़मीन पर इस जोर से हिल रही थी कि कदम जमाना मुश्किल था और वह फिर ऊंधे लेट गए। दिल चाह रहा था कि ज़ोर ज़ोर से चीखने लगें, लेकिन दोनों ही अपनी कमज़ोरी पर काबू पाने में कोशां थे। सुर्ख रोशनी अब भी उन तक पहुंच रही थी, लेकिन अचानक रोशनी खत्म हो गई। उसके साथ ही बात भी खत्म हो गई और उन दोनों ने यह तब्दीली बखूबी महसूस की और उस पर वो अपनी आवाज़ें बंद नहीं रख सके। फरागी, हाँ सज्जाद, बेफिक्र रहो और मैं बेहोश नहीं होऊंगा। और फरागी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारी दलेरी और तुम्हारे आसाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सकूंगा। शुक्रिया सज्जाद। कुछ महसूस किया? हाँ, कुछ तब्दीली हुई है और मेरा ख्याल है कि गार के दहाने पर कोई वजनी चीज़ आ गिरी है। गोया हमारी हिफाजत का इंतज़ाम कुदरत की तरफ से हुआ है। अब कुछ ना कहो फरागी, क्या मतलब?
तुम क्या कह सकते हो, और क्या तुम्हें यकीन है कि लावे की मकदार नहीं बढ़ेगी? और तुम इस दलदले के बारे में क्या कह सकते हो? क्या उसकी शिद्दत इस गार को बर्बाद नहीं कर सकती? जो काम अभी तक नहीं हुआ और उसे खौफजदा होने की क्या जरूरत है? फरागी ने कहा और सज्जाद ने उसे इत्तफाक किया, हाँ ये बात तो ठीक है। और फिर दोनों खामोश हो गए और क़यामत की रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। कभी कभी यूं लगता जैसे लावा बढ़ रहा हो और सनसनाहट तेज हो जाती और उनके सीने खौफ से फटने लगते, लेकिन फिर खामोशी छा जाती और फिर जमीन हिलती तो यूं लगता जैसे गार की छत बैठ रही हो और एक दो दरारों से मिट्टी की बारिश भी हुई थी। और उन्होंने समझ लिया कि उनका आखिरी वक्त करीब आ गया है, लेकिन आखिरी वक्त नहीं आया था। मुसीबत कायम रही थी और गार में कभी कभी वहशतज़दा चीखें सुनाई दे जाती और 2-3 बार बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। और इन आवाज़ों को सुनकर फरागी को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता था और जो लोग बच गए थे वही काफ़ी था। आखिर ज़लज़ला थम गया और तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे और अब कोई झटका नहीं लगा और लावे के बहाव की आवाज़ भी थम गई और फिर खामोशी तवील तर होती गई और बाहर शायद सकूत छा गया था। और फिर गारों की दरारों से रोशनियों की लकीरें अंदर रेंगने लगी। गोया इस खौफनाक रात की सुबह हो गई थी और सूरज निकलने वाला था। और फिर सूरज निकल आया। फिर उन्होंने गार का मंजर देखा। इंतहाई कुशादा गार था। उसकी छत बेहद बुलंद थी और उसमें दरारें पड़ी हुई थी और जिनसे रोशनी रेंग रही थी। अब इतनी रोशनी फैल गई थी कि वो एक दूसरे की शक्लें भी देख सकते। और फरागी की बेताब निगाहों ने गार में आने वालों को देखा। 6 औरतें, 8 मर्द और 5 बच्चे थे और जिनका तलक बस्ती से मालूम होता था। उसके अलावा रतन चंद, हाशिम खान और के साथी भी बैठे हुए थे और उनके अलावा टीम का और कोई फर्द गार में मौजूद नहीं था। गोया सब, या फिर यह भी मुमकिन है कि उन्होंने किसी और गार में पनाह ली हो। सबके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी और उनकी आंखें वहशत से फटी हुई थी। यूं लगता था जैसे सब के सब हवास खो बैठे हैं और उनकी कुव्वते गोयाई सलब हो चुकी हो। फरागी एक एक की शक्ल देखता रहा और उसके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा फड़फड़ाने लगा। आखिर वो डॉक्टर था और फितरी तौर पर इंसान का हमदर्द। चुनाचा वह हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और उनके करीब पहुंच गया। घबराने की जरूरत नहीं, हमारी जिंदगियां महफूज हैं और हम बच गए हैं। और सुनने वालों ने कोई जवाब नहीं दिया और किसी ने आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा और जैसे उनके कान बहरे हों। तब फरागी ने बड़े प्यार से एक बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। बच्ची की मां ने मुस्तरबाना अंदाज में उसे देखा और फिर फरागी को मेज़बान पाकर मुतमईन हो गई, लेकिन उसकी गहरी गहरी वहशत की सांसें गूंजती रहीं। और तब रतन चंद और दूसरे लोग भी खड़े हो गए और वो तीनों भी उनके पास पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सज्जाद भी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंच गया। हेलो सज्जाद। और रतन चंद फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, हेलो रतन चंद। और सज्जाद के लहजे में नरमी थी। अब शर्मिंदगी के इजहार की जरूरत रह जाती है, और क्या हमारी तबाह हाली हमारी शर्मिंदगी का मज़र नहीं? ओह डियर रतन चंद, बराह करम ऐसी गुफ्तगू ना करो और मेरे ज़हन में अब इन बातों का कोई ख्याल नहीं। अजीम लोग फितरी तौर पर नरम मिजाज होते हैं, बल्कि इतना ही काफ़ी है। और ज़हन से सारे ख्यालात निकाल दो रतन चंद। शुक्रिया सज्जाद, लेकिन अब क्या ख्याल है? कम से कम आज का दिन हम खामोशी से इसी गार में गुजारना पड़ेगा। वो किस लिए सज्जाद? बराह करम मेरी बात को महसूस मत करना, और मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए ये पूछ रहा हूँ। लावा ठंडा होने में वक्त लगेगा और हम ये भी नहीं कह सकते कि आतिशफशां सारी आतिशफशानी कर चुका है। हो सकता है कि रात फिर खौफनाक हो और हो गोया अब भी खतरा है। हाँ, नहीं कहा जा सकता। और सदियों से पकने वाला लावा कितनी मकदार रखता है। लेकिन मिस्टर सज्जाद, अगर ये रात भी गुज़श्ता रात की तरह खौफनाक हुई तो शायद ये गार गड़गड़ाहट बर्दाश्त न कर सके और मुमकिन है कि इसकी छत नीचे आ जाए। हर चीज़ मुमकिन है मिस्टर रतनचंद, लेकिन बहर सूरत इसके सिवा कोई चारा नहीं कि फिल वक्त हम इस गार में रहें। ठीक है, और अब हम आपकी बातों से इनहराफ नहीं करेंगे मिस्टर सज्जाद, रतनचंद ने कहा। और मैं सिर्फ आपको अपनी मालूमात की बातें बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा ख्याल मेरे ज़हन में नहीं कि मैं किसी को कोई हदायत दूँ, और आप चाहें तो बाहर निकलकर हालात का जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि गर्म लावा इतनी जल्दी सर्द नहीं हो जाएगा, और अभी गर्म गर्म लावा सर्द हो गया हो तो खौफनाक पत्थरों की दलदल हमारी मुंतज़िर होगी।
रतन चंद के बदन पर कपकपी तारी हो गई और फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, खुदा की पनाह, क्या भयानक रात गुजरी है। उसके साथ हाशिम खान ने जवाब दिया और बोला, काश हम मिस्टर सजाद की बातों को गलत ना समझते। अब इन बातों का वक्त क्या है मिस्टर हाशिम खान, बराह करम खामोश हो जाएं और इस मौजू पर कोई गुफ्तगू ना करें। सजाद ने किसी कदर झंझलाए हुए लहजे में कहा और फिर उनकी निगाहें उन लोगों की तरफ उठ गईं जो बस्ती के लोग थे और अभी तक वैश्यददा बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अफसोस इन बेचारों का क्या किया जाए और ना जाने इनमें से कोई और जिंदा बच सका या नहीं। और सज्जाद ने अफसरदा अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि हम इन लोगों को तसल्ली दें। फरागी ने मुदाखलत की, क्या तसल्ली दे सकते हैं मिस्टर फरागी, क्या कहेंगे इनसे। और बहर सूरत अब तो जो कुछ होना था हो चुका है और वो हो चुका है। अब तो उन्हें भी इस पर सब्र करना होगा। और हम उनके साथ भी बुरा सलूक नहीं किया और हमने उन्हें इतला दी थी कि बस्ती खौफनाक तबाही का शिकार होने वाली है और ये लोग अपनी ज़िंदगी बचाने का बंदोबस्त कर लें, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। हम सब भी बदकिस्मत हैं और मेरा ख्याल है कि अब किस्मत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें ज़िंदगी की तदबीरें करनी चाहिए और रात की खौफनाक तबाही हमें अपना नवाला नहीं बना सकी, तो अब इस गार के अंदर हम मौत का इंतज़ार नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश, और मुझे यकीन है कि इसमें नाकाम नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और फिर वो वैश्यददा लोगों के नज़दीक पहुँच गए और फरागी ने एक शख्स के इशारे पर हाथ रखकर कहा, घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाने की कोशिश करें और बहुत जल्द यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करेंगे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और लगता था जैसे उनकी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही। और तब सज्जाद ने फरागी की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है कि इन लोगों के असाब काफ़ी कशीदा हैं, इन्हें कुछ समझाना मुश्किल होगा। और फिर उनके लिए क्या किया जाए, बस इन्हें खामोश रहने दो और ख़ुद ब खुद जब इनके असाब दुरुस्त होंगे तो ये हवास में वापस आ जाएंगे। और फरागी ने कहा और उसकी निगाहें गार में बैठे हुए लोगों का जायजा ले रही थी। और उसके बाद फिर पूरा दिन भूख और प्यास में गुजर गया और फिर रात हो गई, लेकिन रात पुरसकून थी और गैर मुतवक्का तौर पर पुरसकून गुजर गई। गोया आतिशफशां अपनी आतिशफशानी करके सर्द हो चुका था। दूसरी सुबह उन्होंने इत्मीनान की गहरी सांसें ली और फिर बाकायदा इस सिलसिले में उन लोगों की मीटिंग शुरू हो गई। अब क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है औरतों और बच्चों को अभी इसी गार में रहने दिया जाए और गार के दहाने पर कोई पत्थर आ पड़ा है और हम सब मिलकर उसे हटाएं और बाहर निकलें। और अगर लावा ठंडा हो चुका है और जिसका अंदाज़ा बहर सूरत एक आदमी को नीचे उतर कर करना होगा और फिर हम उन बदनसीब लोगों को तलाश करेंगे। मुमकिन है कि इन गारों में कुछ दूसरे लोग भी मौजूद हों और बस्ती का हाल देखिए क्या हुआ। और अगर खुदा न ख्वास्ता अभी तक कुछ बुरे असरात मौजूद हैं तो फिर हम वापस इसी गार में आ जाएंगे और औरतों को साथ लेकर थकना बेहतर ना होगा और इसलिए उनका यही रहना ठीक है। बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके लिए क्या हम इन मर्दों को तैयार कर सकेंगे? तैयार करना ही पड़ेगा उन्हें, वरना उनकी मर्जी। हम तनहा भी जा सकते हैं। ठीक है, और आप इनसे बात करें मिस्टर फरागी, हाशिम खान ने कहा। फरागी मर्दों के पास पहुंच गया और उसने नहायत मौसर अंदाज में कहा, दोस्तों, जो तबाही हुई है उसमें आप तनहा नहीं हैं और हम सब उसमें शरीक हैं और आपको अंदाज़ा है कि हम खुद भी इस तबाही का शिकार हैं। मेरी राय है कि इस मुसीबत का नहायत पामर्दी से मुकाबला करें और इस तरह बैठे रहने से कुछ ना होगा और हमें हिम्मत करना होगी। मर्द जो इतना वक्त गुजर जाने के बाद खुद पर काबू पा चुके थे, हरासा निगाहों से फरागी को देखने लगे और फिर उनमें से एक आदमी की आवाज़ उभरी, मगर हम क्या कर सकते हैं मिस्टर फरागी? जिंदगी की जद्दोजहद, हमें बहरहाल यहाँ से निकलना है। कहाँ जाएंगे यहाँ से निकलकर? और अब हमारा कौन सा ठिकाना है? हमारी बस्ती तबाह हो चुकी है, हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं और हमारे लोग। और एक नौजवान ने आंसू बहाते हुए कहा, वो लोग अपनी नफरत का शिकार हो गए और अगर वो हमारी बातों पर तवज्जो देते तो शायद उनकी ज़िंदगी बच जाती। बस्ती तबाह हो जाती, सामान तबाह हो जाता, लेकिन इंसान बच जाते। तुम खुद बताओ उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता था? हाँ साहब, गलती हुई थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? जो बच गए हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद करनी है और हम इन गारों में भूखे प्यासे जान नहीं दे सकते। हमें यहाँ से निकलकर ज़िंदगी की तलाश करनी होगी और हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। ज़ाहिर है कि हमारी कैफियत मुख्तलिफ नहीं। हम आपके अहकामात की तामील करेंगे और तब उन औरतों को तसल्ली दो और उनसे कहो कि तुम उनकी ज़िंदगियां बचा लोगे। औरतें सुन रही हैं, एक नौजवान ने कहा, और बच्चों की निगरानी आपका फ़र्ज है।
हमें एहसास है कि ये सब बच्चे भूखे प्यासे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाहर निकलने के बाद सबसे पहले इनकी खुराक का बंदोबस्त करें। और फरागी ने औरतों से कहा, आओ दोस्तों, सजाद ने कहा। और फिर 13 ताकतवर लोग गार के दहाने पर पहुंच गए और जिसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा था। जो चट्टान गार के ऊपर आई थी वो इस तरह फिट हो गई थी कि उसने कोई रखना भी नहीं छोड़ा था, और उसके अलावा अंदर की जानब उसकी नोकें उभरी हुई थीं। तकरीबन तमाम लोगों ने उस खौफजदा निगाहों से देखा। फरागी, सजाद ने आहिस्ता से कहा, और सूरत हाल एक और रुख इख्तियार करती हुई मालूम हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ, फरागी ने कहा, और सजाद के चेहरे से पहली बार एक अजीब सी कफियत झलकने लगी। उसने सरासीमगा निगाहों से दूसरों की जानब देखा, लेकिन उस वक्त डॉक्टर फरागी आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ चट्टान पर टिका दिए। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी चट्टान के पास आ गए थे। अपना तवाज़ुन कायम रखना और जोर लगाओ, फरागी ने कहा, और वो लोग पूरी कुव्वत से धकेलने लगे। लेकिन चट्टान क्या पहाड़ था पूरा, और उसे जुम्बश भी ना हुई। वो दांत बीज कर जोर लगा रहे थे, और बहुत जल्द उन्हें अंदाजा हो गया कि चट्टान उनकी तवक्का से कहीं ज्यादा बड़ी और ठोस है। सब पसीना पसीना हो गए और फिर वो थक कर रुक गए। आंखों की सरासीमगी अब एक दूसरे से पोशीदा नहीं रह सकती थी, और अब एक दूसरे को खौफजदा निगाहों से देख रहे थे। क्या मिस्टर फरागी, रतन चंद ने कहा, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, एक बार फिर कोशिश की जाए। फरागी बोला, और सब तैयार हो गए। चट्टान पर एक बार फिर पहले से भी ज्यादा कुव्वत सिर्फ की गई, लेकिन नतीजा पहले से मुख्तलिफ नहीं था। चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली और वो लोग पसीना पसीना हो गए, और सब के दिमाग चकराने लगे, और उसके साथ ही उनके दिलों में हरास उभरने लगा। अगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली तो एक खौफनाक सवाल उनके सामने मुंह फाड़ कर आ खड़ा हुआ, और ये तवील और कुशादा गार उन जिंदा इंसानों का मकबरा बन जाएगा, और यहाँ वो कितने रोज तक जिंदा रह सकेंगे? कौन इस चट्टान की तरफ मतवज्जा होगा, और यहाँ से निकलने की क्या सूरत हो सकती है? सब इस बात को महसूस कर रहे थे, और खास तौर से इस बस्ती के लोग, कच्चे ज़हनों के मालिक और सीधे साधे लोग जो अपनी इस वहशत को पोशीदा न रख सके। अब क्या होगा? और एक नौजवान के मुंह से खौफजदा आवाज निकली, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और दूसरे ने रोई आवाज में कहा, हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, और अगर हम दिल छोड़ बैठे तो फिर कुछ ना होगा। और तुम्हारे साथ औरतें भी हैं। और सज्जाद ने तसल्ली देने वाले लहजे में कहा, औरतें? और फरागी के मुंह से निकला, और फिर उसने आहिस्ता से सज्जाद को पुकारा, सज्जाद, क्या बात है फरागी? वो औरतें एक मर्द के बराबर तो कुव्वत रखती होंगी, क्या मतलब? सज्जाद ने ताज्जुब से पूछा। 5 औरतें हैं हमारे साथ। हाँ, फिर क्यों ना उन्हें भी इस काम में शरीक करने की कोशिश की जाए, और मुमकिन चट्टान को थोड़ी सी मजीद कुव्वत दरकार हो, और कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक कहते हैं, और हम एक अच्छी खासी कुव्वत के साथ नजरअंदाज करते हुए हैं। बिल्कुल ठीक, सज्जाद ने कहा, और फरागी ने बस्ती के नौजवानों की तरफ देखा, और नौजवानों को क्या एतराज हो सकता था। चुनाचा एक नौजवान के सुपुर्द ये काम किया गया, और वो औरतों के पास पहुंच गया, और फिर थोड़ी देर के बाद वो औरतों को तैयार करके ले आया। औरतें भी मुसीबत की मारी उसके लिए तैयार हो गई थी। रतन चंद और उसके दूसरे साथी थक गए थे, और आम हालात में अगर कोई दूसरा काम होता तो यकीनी तौर पर वह साफ इनकार कर देते, लेकिन चट्टान का मसला सब की जिंदगी और मौत का मसला था। वो सब भी बदहवास थे, और इसीलिए बिला चूंच रास काम में शामिल हो गए थे। और कौन था जिसने पूरी कुव्वत ना सिर्फ कर दी हो? यहाँ तक कि औरतें भी पूरी कुव्वत सिर्फ कर रही थी, और उनके हसीन चेहरे सुर्ख हो गए। लेकिन चट्टान ने शिकस्त ना मानी, और यूं मालूम होता था जैसे वो गार के दहाने के चट्टानी रखनों से जुड़ गई हो, और अब उसके सिरकने का कोई इम्कान ना हो। उन्होंने अपने बदन की पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी, लेकिन वह टस से मिस ना हुई, और बहुत से खांसने लगे, और बहुत से जमीन पर बैठ गए, और सब की हालत खराब हो गई। लेकिन उसके साथ उनकी मायूसी भी आखिरी हदों को छूने लगी, और अब उन्हें यकीन हो गया था कि वह सब मिलकर भी इस चट्टान को अपनी जगह से हटाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगहों पर वापस आ गए, और बस्ती के नौजवान परेशान चेहरा लिए एक जगह जमा हो गए। रतन चंद और उसके साथी सज्जाद और फरागी के करीब बैठ गए, और सब की आंखों में लातादाद सवाल थे, लेकिन ना जाने क्यों सब ही एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे, और ना जाने क्यों सब के जहनों में एक ही सवाल था, और दूसरा बोले तो वो खुद भी कुछ कहें। जब यह खामोशी तवील होने लगी तो सबको इसकी तवालत का एहसास हुआ, और फिर बोलने में पहल करके उस जमूत को तोड़ने वाला रतन चंद था। मिस्टर सज्जाद, उसने सज्जाद को मुखातब किया, क्या बात है मिस्टर रतन चंद?
हम सब ने, मेरा मतलब है कि टीम के लोगों ने आपसे इख्तलाफ किया था, बल्कि मुजरमाना तौर पर आपके ख्यालात का मजाक भी उड़ाया था। लेकिन तकदीर ने हमें हमारी हिमाकत की सजा देने में कुछ मोहलत भी नहीं दी और हमें फौरी ही हमारी हिमाकत की सजा मिल गई। लेकिन सुनिए मिस्टर रतन चंद, अब सिर्फ वो बातें करें जो मफीद और कार आमद हो। और सज्जाद ने लिहाजे से कहा और रतन चंद एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। सूरत हाल जिस कदर खौफनाक है उसका अंदाजा सबको हो चुका होगा और चट्टान बहुत बड़ी मालूम होती है। उस गार के दहाने से उसे हटाना एक नामुमकिन अमर हो गया है, फरागी ने कहा। और बस्ती के सारे लोग काबिल रहम हैं और ख़ास तौर से ये बच्चे और औरतें जो लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं वो पूरी तौर पर हमदर्दी के मुस्तहिक हैं और आने वाले हालात जिस कदर भयानक होंगे हमें उनके बारे में अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम नहीं समझते मिस्टर फरागी अगर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और हमारी अपनी जिंदगियां भी इस कश्मकश का शिकार हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ उनके बारे में सोचना क्या मायने रखता है। और रतन चंद ने कहा, आपने दुरुस्त कहा मिस्टर रतन चंद, लेकिन हमारी निस्बत उनके ज़हन छोटे और महदूद हैं। लेकिन आपकी जहानत उनके क्या काम आ सकती है। गार का ज़ाब्ता इस बदअमनी को रोकेगा जो फैलने वाली है। खूब, तो आप यहाँ तवील क़याम का इरादा रखते हैं। और रतन चंद ने महकमा खेज अंदाज में कहा, मैं तो यहाँ तवील क़याम करूँगा और आपका जब दिल चाहे बाहर चले जाए। और फरागी ने भरपूर तंज किया और रतन चंद के साथी भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। मैं फरागी की बात से मुतफिक हूँ और बजाय उसके कि हम अपने तौर पर सोचें, हमें इज्तिमाई तौर पर कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? और वही बात मैं जानना चाहता हूँ, रतन चंद ने जल्लाए हुए अंदाज में कहा। गार का रास्ता बंद हो चुका है और जितना वक्त हम लोग गुजार चुके हैं वो खौफ का वक्त था और हमारे जिस्मों ने उसकी इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब भूख और प्यास का दौर शुरू होगा यकीनन, और उसके बाद पागलपन का, और हम इस पागलपन को रोकना है। हम लोग कुछ नहीं समझते लेकिन उसके बावजूद हम हर तावन के लिए तैयार हैं। और रतन चंद ने बेजार लहजे में कहा, सबसे पहले इन नौजवानों के सामने सूरत हाल का इजहार करना ज़रूरी है और उसके बाद हदायत देना होगी। उससे ये होगा मिस्टर रतन चंद कि हम जो कुछ करना चाहेंगे वो सुकून क्या करेंगे। ठीक है, रतन चंद हाथ उठाकर कहा, और जो ज़ाब्ता बनाया जाएगा उसकी पाबंदी सबको करना होगी। और फरागी के चेहरे पर दुरुस्तगी के आसार फैल गए। उसे रतन चंद के अंदाज पर गुस्सा आ गया था। और ऐसा ही होगा मिस्टर फरागी। तब फरागी ने नौजवानों को फिर जमा किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। ये औरतें तुम्हारी बस्ती की औरतें हैं और मुमकिन है कि इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो, लेकिन बस्ती का रिश्ता किसी बड़े से बड़े रिश्ते से कम नहीं होता। हमें उनका एहतराम करना होगा और औरतों को तुम लोगों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और तुम्हें एहसास होगा कि हम पर एक कठिन वक्त आन पड़ा है, फरागी ने कहा। नौजवान अजीब सी निगाहों से उन दोनों को देखने लगे। और तुम्हें हमारी बात से इख्तलाफ तो नहीं? नहीं डॉक्टर, लेकिन क्या जमानत है कि तुम लोग उनसे कोई बुरा सलूक नहीं करोगे। और बस्ती के एक नौजवान ने कहा, दोस्त, तुम्हारा सोचना ठीक है और मुझे खुशी है कि तुम इतने अच्छे अंदाज में सोच रहे हो। सुनो, हमारी तादाद 5 है और तुम 8 हो। अगर हम में से कोई गार के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करे तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम उसके साथ सबसे बुरा सलूक करो और तुम उसे ज़ख्मी कर सकते हो, कत्ल कर सकते हो। और मैं और सजाद तुम्हारी मदद करेंगे, और ना भी करें तब भी तुम हम पर भारी रहोगे क्योंकि तुम्हारी तादाद ज़्यादा है। हमें तुम्हारी रैयत पर भरोसा है डॉक्टर, और यकीन करो हम भी औरतों की तरफ से फिक्रमंद थे। यहाँ हर फर्द को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाती है और हम सब गलत इंसान के दुश्मन होंगे। शुक्रिया डॉक्टर। और नौजवान ने मोहब्बत से कहा, बहरहाल हम यहाँ से निकलने की कोशिश जारी रखेंगे और हम तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, नौजवान ने कहा। और ये मसला तय हो गया। और तब फरागी ने दूसरी तजवीज़ पेश की। अभी हमने इस गार का पूरी तरह जायज़ा नहीं लिया। बहरहाल जहाँ हम मौजूद हैं और ये जगह पूरी तौर पर महफूज है और यहाँ हवा और रोशनी भी मौजूद है। चुनाचा गार के इस कोने में औरतों को यकजा कर दिया जाए ताकि वो हमारी निगाहों के सामने रहें और तुम लोग वो सिमत ले लो और फिर हम यहाँ मौजूद हैं और इस तरह हम अलग अलग भी रहेंगे और एक दूसरे पर निगाह भी रखेंगे। मुनासिब है, नौजवान ने कहा। और फिर औरतों को एक जगह जमा कर दिया गया और उन दोनों ने सब्र से काम लेने की हदायत की थी। नौजवानों को उनकी मुंतखब जगह तैनात कर दिया गया और इस काम से फारिग होकर दोनों वापस अपनी जगह आ गए। क्या सोच रहे हो मिस्टर सज्जाद? कोई खास बात नहीं फरागी। और सज्जाद फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, फिर भी यकीन करो सिर्फ जहन को मर्तमा कर रहा हूँ।
आओ फिर इस गार का अच्छी तरह से जायजा लें। सज्जाद उठ गया और बिला शुबा वो एक अच्छा इंसान था और वो दोनों गार के दूसरे हिस्सों की तरफ रवाना हो गए। कुछ वक्फे के बाद हमारे जिस्मों में जान नहीं रहेगी और हम अमल में सुस्त पड़ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी नौबत आने से पहले हमें जो कुछ करना है कर लें। अच्छा ख्याल है, रोशनी है और हमें गार में ऐसे हिस्सों को तलाश करना होगा जो किसी कदर कमज़ोर हों और मुमकिन है हम उन्हें तोड़कर कुछ रास्ता बना सकें। अच्छा ख्याल है, सज्जाद ने कहा, और फिर वो दोनों गार में चक्कर लगाने लगे। बिलाशुबा गार बेहद कुशादा था और गार दर गार था, और एक तवील व अरीद हाल का अख्तिताम एक और दहाने पर हुआ था, और छोटे से दहाने के दूसरी तरफ भी एक कुशादा गार था, और रखने यहाँ भी थे लेकिन बुलंदियों पर। लेकिन उसके साथ एक छोटा सा गार और था। उन्होंने पत्थर लेकर गारों का एक रखना ठोक बजाकर देखा और कोई दीवार कमज़ोर नहीं पाई। काफ़ी देर तक वे इस काम में मसरूफ़ रहे और फिर गहरी गहरी सांस लेकर मायूसी का इजहार करने लगे। एक मसला ज़रूर हल हो गया। क्या? ये छोटा गार ज़रूरियात फ़रागत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया ज़रूरियात के लिए औरतें और मर्द इस तरफ जा सकते हैं और बदबू वहाँ तक ना पहुँच सकेगी। मुनासिब ख्याल है और उसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चले वापस चल पड़े और यहाँ का माहौल वही है, और सहमे में बच्चे भी खामोश बैठे, सबके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। फिर रात होगी और जिसका अंदाज़ा रोशनी ख़त्म हो जाने की वजह से हुआ, और सब फर्श पर लेट गए, थके थके, भूख और प्यास से नडाल, और गार में इतने इंसान मौजूद थे लेकिन मौत किसी खामोशी छाई हुई थी। रात गुजरती रही और कोई सो रहा था और कोई जाग रहा था, और किसी को किसी का पता नहीं था, और बस गहरी गहरी सांसें सर्द हवाओं की मानद उभर रही थी, और कभी कभी किसी के कराह उभर आती, और फिर खामोशी। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर गई और दूसरा दिन फिर मौत की तरह वीरान था, और आज हालत और ज़्यादा ख़राब थी। कोई अपनी जगह से उठ नहीं सका और वह सब फटी फटी निगाहों से छत को घूर रहे थे। और फिर एक औरत की सिसकियों ने माहौल का सकूत तोड़ दिया। लोगों की निगाहें उस तरफ उठ गईं, लेकिन किसी ने जुबान नहीं हिलाई, और सबसे पहले उठकर बैठने वाला फरागी था, और उस वक़्त सज्जाद भी उसके साथ नहीं दे रहा था। औरत अपनी 5 साला बच्ची को सीने से लिपटाए हुए थी, और फरागी देखता रहा। फिर वो उठा और औरत के करीब पहुंच गया। औरत की सिसकियां और गहरी हो गईं और अब उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। क्या बात है? और फरागी उसके नज़दीक बैठ गया। ये औरत ने बच्ची की तरफ इशारा किया। क्या हुआ? और फरागी बेख्तियार बच्ची पर झुक गया। डॉक्टर होने की हैसियत से उसने फ़ौरन पहचान लिया कि बच्ची बेजान है, और उसके होंठ खुश्क थे और यकीनन वो भूख और प्यास से मर चुकी थी। फरागी ने उसके इशारे पर हाथ रख दिया। सब्र करो। और मैं जब तक हो सका अपनी ज़ुबान चुसवाती रही, लेकिन औरत ने सिसकियाँ बढ़ते हुए कहा, और फरागी ने आहिस्ता से उसका इशारा थपथपाया। लाओ उसे मुझे दे दो। नहीं। औरत बिलक बिलक कर रोने लगी, और दूसरी औरतों ने भी बच्चों को अपने सीनों से भींच लिया। उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए, और फिर उन्होंने वे आंसू बच्चों के होंठों पर टिपका दिए। और अब तुम इसका क्या करोगी? लाओ मुझे दे दो, फरागी ने कहा। बिल आकर उसने बच्ची को औरत की गोद से ले लिया, और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह बच्ची को लेकर गार के दूसरे हिस्से में पहुंच गया, और फिर उसने उसे कोने में रख दिया। एक ठंडी सांस लेकर जब वो पलटा तो सज्जाद उसके नज़दीक खड़ा हुआ था। इब्तिदा हो गई, और सज्जाद नढाल लहजे में बोला, हाँ। और फरागी ने एक अफसोदा सी सांस ली। सबका यही अंजाम होगा। क्या किया जाए सज्जाद? और कोई सूरत नहीं है। और सज्जाद मायूसी से बोला, और फिर कहने लगा, हम नाकाम रहे हैं फरागी। क्या फ़ायदा इन अखलाकियात से, और हमें सिर्फ मौत ही क्या तो इंतज़ार करना है।